ہمیں یہ سعادت ملی ہے کہ ہم اس کے لوگ ہونے کی بڑی برکت میں شریک ہو سکیں. آمین آمین. خداوند کی گہری حضوری اور اس کا گہرا مسا ہمارے درمیان ہے اور ہم سب اس کو محسوس کر سکتے ہیں کہ خداوند جو ہے وہ اپنی قدرت کو ہمارے درمیان انڈیل رہا ہے. آج جب ہم عبادت کلام کے بعد تھوڑا وقت گزاریں گے اور ہم دعا کریں گے کہ خدا ان زندگیوں کو جن کو پاک روح کا بپتسمہ نہیں ہوا انہیں پاک روح کا بپتسمہ ہو، وہ اس کو ریسیو کر سکیں. اور میرا ایمان ہے کہ خداوند کی حضوری وہ ایٹماسفیئر جو ہے وہ موجود ہے. آپ نے ایمان سے موجود رہنا ہے اور میں اس میں گائیڈ کروں گا خداوند کے پاک کلام میں سے بھی کہ کیسے آپ اس برکت کو آخر میں کچھ حصہ کہ کیسے آپ اس کو ریسیو کر سکتے ہیں، کیسے آپ اس کو لے سکتے ہیں. جو حوالہ ہمارے سامنے پڑھا گیا ہے اعمال کی کتاب میں سے، آپ اس حوالے سے بخوبی واقف ہیں. بڑا مشہور حوالہ ہے یہ اور آج پوری دنیا میں کم و بیش اس حوالے یا چند ایک اور حوالہ جات ہیں ان میں سے تلاوت جو ہے وہ کی گئی ہے. میں صرف جو ہے اس بات سے خوش ہوں کہ خدا نے ہمیں یہ توفیق بخش دی ہے، یہ سمجھ دے دی ہے کہ ہم اس کے حضور میں آتے ہیں، ہم اس کے حضور میں حاضر رہنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ یاد رکھیں کہ خدا کے پاک روح کے بغیر کوئی بھی شخص مسیح کو خدا کا بیٹا نہیں کہہ سکتا. خدا کے پاک روح کے بغیر کوئی اس کے حضور میں حاضر نہیں ہو سکتا. لیکن آج جب ہم اس جگہ میں حاضر ہیں تو پاک روح کے تعلق سے چند ایک باتیں جو ہیں ان کو بھی ہم سیکھنے کی کوشش کرتے چلے جائیں گے. آپ سب جنہوں نے خدا یسوع مسیح کو اپنی زندگی دی ہے، اسے اپنا نجات دہندہ قبول کیا ہے، اسے اپنا آپ دیا ہے، جیسے اس نے نیکودیمس کو کہا کہ تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ضروری ہے. جب ہم اس پروسیس میں سے گزر جاتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں جو بات یاد رکھنی ہے، ہمیں جو بات اپنی ذہن کے اندر بٹھا لینی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کبھی بھی اکیلے نہیں ہیں. آپ اور میں کبھی بھی ایمپٹی نہیں ہیں، ہم کبھی بھی خالی نہیں ہیں، بلکہ ہم خدا کی قدرت سے بھرے ہوئے لوگ. آپ خالی لوگ نہیں ہیں، آپ جو ہیں آرڈنری لوگ نہیں ہیں، عام لوگ نہیں ہیں، بلکہ آپ خاص لوگ ہیں کیونکہ خدا نے آپ کو چنا ہے. آپ نے اپنا آپ پیش کیا اور خدا نے آپ کو چن لیا. اور وہ جو الہی قدرت رکھتا ہے، وہ جو الہوں کا الہ ہے، وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ جو خداوندوں کا خدا ہے، وہ آپ میں رہتا ہے. یہ آپ کی ویلیو ہے، یہ آپ کی جگہ ہے، یہ آپ کی پوزیشن ہے. سو مجھے اور آپ کو اپنی پوزیشن کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم کون ہیں، ہم کیا ہیں، ہمارے اندر کیا ہے اور ہمارے باہر کیا ہے. خدا کا پاک روح جو ہے وہ استاد جو ہمیں سکھاتا ہے، وہ رہنما جو ہماری رہنمائی کرتا ہے. پاک روح کو کم و بیش بہت زیادہ مس انڈرسٹوڈ جو ہے وہ کیا گیا ہے. پاک روح کی شخصیت اس کو جو ہے پاک روح کو بہت زیادہ اگنور کیا گیا ہے. آج دنیا میں بہت کم جو ہے آپ ایسے مواقع دیکھتے ہیں جب آپ خداوند کے پاک روح کے بارے میں سیکھتے ہیں، اس کو جانتے ہیں، یا کلیسیائیں خدا کے پاک روح کے اوپر جو ہے وہ فوکس کرتی ہیں. کیونکہ ہم یہ تو سب مانتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ خدا ثالوث ہے، یعنی وہ ہی از اے ٹرینٹی گاڈ، خدا جس میں 3 شخصیتیں موجود ہیں.
और पिछले ही दिनों हम बात कर रहे थे, मैं और अंकल सराब, और मैं उनको बता रहा था कि जो भी कुछ बनाता है, बनाने वाला बनाई हुई चीज में कोई ना कोई अपना सिग्नेचर छोड़ता है। और चूंकि खुदा ने हमें बनाया है, तो खुदा ने अपना सिग्नेचर ये छोड़ा है कि हमें उसने ट्रियून बनाया है। वो खुद ट्रियून गॉड है, और उसने हमें बदन दिया है, उसने हमें जान दी है, और उसने हमें रूह दी है। ये तीनों अलग अलग हैं, इनके फंक्शन अलग हैं, इनकी हर एक चीज अलग है, इनकी साइंस अलग है। गोया ये तीन अलग अलग चीजें और शख्सियतें हैं, लेकिन हम ये तीनों चीजें मिल के इंसान हैं। ऐसे ही खुदा सालूस जो है, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूहुल कुद्स, ये मिल के खुदा है जिसको मैं और आप जानते और पहचानते हैं। लेकिन ये अपनी अपनी कैपेसिटी में अलग अलग मूव करते हैं और अलग अलग शख्सियत रखते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये तीन खुदा हैं। अगर आप गैर कौमों से मिलेंगे, वो कहेंगे कि जी आप तो तीन खुदाओं को मानते हैं, 1+1+1। चूंकि हम मानते हैं, इसलिए हमने बताना है कि हम कैसे मानते हैं। उनकी डेफिनेशन ये है कि एक खुदा जमा एक खुदा जमा एक खुदा इज इक्वल टू तीन खुदा। लेकिन ये उनकी डेफिनेशन है। हम मानते हैं तो हम उनको बताते हैं कि नहीं, एक खुदा जरब एक खुदा जरब एक खुदा इज इक्वल टू ओनली एंड ओनली वन गॉड। तो खुदा को जानना और खुदा को मानना, और यही तसलीस का तीसरा कानून, खुदाए पाक रूह, उसकी ईद जो है आज मैं और आप मना रहे हैं। लोग जो है बाज़ का ये फील करते हैं कि जो पाक रूह है गोया वो एक फीलिंग है। बाज़ का लोग समझते हैं कि खुदा का पाक रूह जो है वो ऐसे है गोया कि एक हवा हो, आंधी की तरह हो, जो चलती है, हमें महसूस होती है और नजर नहीं आती। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं, खुदा का पाक रूह जो है, खुदाए पाक रूह मुकम्मल खुदा है। जैसे खुदा बाप खुदा है, जैसे यस्सु खुदा है, वैसे ही पाक रूह भी खुदा है, और हमें उसको उसी तौर पे जानना और उसी तौर पे समझना है। बाज़ का लोग ये समझते हैं कि पाक रूह कोई फोर्स है। अगर आप कुछ लोग को यहाँ पे मिलेंगे, वो कहते हैं कि नहीं, मैं एक फोर्स को मानता हूं, एक फोर्स है, क्योंकि खुदा नजर तो नहीं आता, तो एक फोर्स है, और वो उसको या चंद एक मसीही ये समझते हैं कि पाक रूह गोया एक फोर्स है जिसको हम जानते और मानते हैं। बात का लोग समझते हैं कि ये कोई मिस्टिकल बीइंग है, कोई ऐसी शख्सियत है जो उस वक्त ही महसूस होती है जब कोई बड़ा जोश चढ़ जाए, तो फिर महसूस होना शुरू होती है। मैं हमेशा ये कहता हूं, जोश चढ़ने से पाक रूह महसूस नहीं होता, पाक रूह के आने से जोश चढ़ जाता है, और लोग समझते हैं कि ये ताजा मैं के नशे में है। जब तक कलीसिया, ये शागिर्द जिनके आप जिक्र पढ़ते हैं, मुकद्दस पतरस जिसको ये जिम्मेदारी दी गई, जब खुदाम यीशु मसीह उनके साथ थे, खुदाम यीशु मसीह जी उठे और खुदाम यीशु मसीह उनको नजर आए हैं, लेकिन मुकद्दस पतरस जो है वो और उसके साथ दूसरे जो भाई हैं वो सारे क्या करने चले गए, दोबारा से मछलियां पकड़ने चले गए। वो दोबारा से जो है सारी खिदमत का काम छोड़ के जो वो मसीह के साथ कर रहे थे, वो दोबारा मछलियां पकड़ने चले गए। लेकिन जिस दिन इन लोगों के अंदर, कलीसिया के अंदर जो 120 की जमात है, जब इनके अंदर खुदा का पाक रूह आया और ये ताजा मैं के नशे से भर गए, उस दिन के बाद पतरस कभी मछली पकड़ने नहीं गया। उसने मछलियां पकड़ने की बजाय आदमी पकड़ने शुरू कर दिए, क्योंकि खुदावन ने कहा था, तू जो है मछेरा है, तू माहीगीर है, मैं तुझे आदमगीर बनाऊंगा। और वो आदमगीर उस दिन बना जिस दिन खुदा का पाक रूह उसके ऊपर
ऊपर नाजिल हुआ, 120 की जमात के ऊपर नाजिल हुआ। अगर वो लोग जो मसीह के साथ फिजिकली 3.5 साल रहे हैं, अगर उनके ऊपर पाक रूह के नज़ूल की जरूरत है, अगर उनके ऊपर जरूरत है कि पाक रूह नाज़िल हो और वो गैर जुबानें बोलने लगे, तो किस कदर ज्यादा जरूरी है कि मैं और आप भी इस तजर्बे को हासिल करें। हम सिर्फ इसलिए इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ये कोई किसी डिनोमिनेशन का निशान नहीं है गैर जुबाने बोलना। बात का लोग समझते नहीं जी ये डिनोमिनेशन का, नहीं, ये खुदा के कलाम की बात है और हमें इसको जानना और हमें इसको समझना है। सो खुदा ने अपने पाक रूह को भेजा। क्यों? इसलिए भेजा क्योंकि मसीह ने वादा किया था। यूहन्ना की इंजील 14 बाब की 16 आयत पढ़े, 17 आयत पढ़े, तो वहां पे मसीह ने वादा किया था कि मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा, मैं एक दूसरा मददगार तुम्हारे लिए भेजूंगा। इसलिए उसने उसको हमारे लिए और हमारी जिंदगी में भेजा है, ताकि आप अपने अंदर और अपने बाहर खुदा की कुदरत से भर जाएं, और उस खुदा की कुदरत से जिसने आसमान को बनाया है, जिसने जमीन को बनाया है, जिसने अपनी कुदरत से हर एक चीज को क्रिएट किया है, उससे मैं और आप भर जाएं। जो आपके अंदर रहता है खुदा का पाक रूह, ये वही है जो इब्तिदा के अंदर, पैदाइश की पहली किताब के अंदर पहले बाब के अंदर उसकी दूसरी आयत के अंदर जो है पानियों की सतह के ऊपर क्या करता था? जुम्बश किया करता था। और जब वो पानियों की सतह पे जुम्बश कर रहा था तो वो गोया इस दुनिया को तख्लीक कर रहा था, इसको सेंच रहा था। जैसे मुर्गी अंडे के ऊपर बैठती है और वो चंद दिन बैठती है तो उसमें से, उन अंडों में से जिंदगी निकलने लगती है। जब खुदा का पाक रूह जुम्बश कर रहा था तो उस जुम्बश के बाद उसमें से जिंदगी निकलनी शुरू हुई, उसमें से जमीन निकली, पानी निकले, नबातात निकले, हैवानात निकले, मैं निकला, आप निकले, आदम निकला, हवा निकली, जिंदगी बना शुरू हो गई। वही पाक रूह आपके ऊपर और वही पाक रूह मेरे ऊपर जुम्बश करता है, और वही पाक रूह जो है वो हमारे अंदर रहता है। हालेलुया। क्रिएटर गॉड, ऐसी कुदरत रखने वाला जब हमारे अंदर हो तो फिर कोई उज़र नहीं है, फिर कोई बहाना नहीं है कि हम पावरलेस जिंदगी बसर करें। मैं तो 2-3 दिन से जोश से भरा हूं, मेरे अंदर जो है एक नई चीज चलना शुरू हो गई है। किसी चीज की आपको एक नए तौर पे समझ आ जाती है कि खुदा मेरे अंदर रहता है। ये कोई ऐसी बात नहीं है, हमने इसको बोल बोल के इसको जो है बेमानी कर लिया अपने लिए। खुदा काश हमें ये मुकाशवा दे। मैंने जब आसमान की तरफ देखा कल और मैं आसमान को देख रहा था तो मैं शुक्र ये कर रहा था, ए खुदा, तू जिसने इस आसमान को जो मेरी आंखों में समा नहीं सकता बनाया है, तू मेरे अंदर रहता है। दिस मच ग्रेट इट इज। बड़े से बड़ा आप क्या देख सकते हैं एक वक्त में? आसमान। इससे ज्यादा बड़ा कुछ नहीं देख सकते। आप आसमान ने सितारे, सूरज, चांद, पता नहीं कितने कितने बड़े हैं वो देख सकते हैं। उसको बनाने वाला आपके और मेरे अंदर रहता है। इब्लीस जो है वो ईमानदारों की जिंदगी में मूव करने की कोशिश करता है। उसको इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई चर्च जा रहा है, किसने स्लीप पहनी हुई है, कोई चंदे दे रहा है। ये सारी अच्छी बातें हैं, खूबसूरत बातें हैं, ऐसी बात नहीं है। ये सब कुछ हमने करना है, लेकिन उसको इससे फर्क नहीं पड़ता। वो इस चीज से बिल्कुल नहीं डरता अगर आप ये सब कुछ कर रहे हैं।
वो उन लोगों से डरता है जिनको ये पता लग जाता है कि जो उसके अंदर है वो कौन है और जो उसके बाहर उसका दुश्मन है वो कौन है। वो उससे डरता है जिसको ये पता लग जाता है कि जो मेरे अंदर है वो उससे बड़ा है जो मेरे खिलाफ है, वो उससे जोरावर है जो मेरे खिलाफ है, वो उससे कुदरत वाला है जो मेरे खिलाफ है। यानी मेरे अंदर खुदा पाक रूह रहता है जिसको ये पता लग जाता है और उसको मुकाशफा मिल जाता है, समझ आ जाती है, वो उस शख्स से, उस बेटे और बेटी से इब्लीस जो है वो डरने लगता है, परेशान हो जाता है। मैं और आप जो है वो कोई मट्टी का और ये गोश्त का और खून का लोथड़ा नहीं है। आप और मैं मकदस है, आप और मैं हैकल है, आप और मैं घर है किसका? पाक रूह का। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। खुदा का रूह तुम में रहता है, सुकूनत करता है, वो अंदर बसा हुआ है। इसके लिए मुझे और आपको बनाया गया था। मैंने एक पैगाम इस पे दिया था। सो इब्लीस जो है वो इन बातों से दूर ले जाने के लिए आपके ऊपर टाइम नहीं लगाता, वो आपके ऊपर ओवर टाइम लगाता है कि मैं और आप किसी तरह इन बातों से बहकर दूर निकल जाएं। इन बातों से बह के हम इतनी दूर चले जाएं कि हम जो है वो परेशान हो जाएं, बेहाल हो जाएं, बदहाल हो जाएं, हमें समझ ना लगे क्या करनी है। जब आपको कुछ समझ ना लगे आपने क्या करना है, तो आपने बाहर कुछ नहीं देखना, आपने अपने अंदर देखना है। क्योंकि जो सबसे बड़ा है, जो खुदा है, जो कुव्वत रखता है, जो कुदरत रखता है, जो आपके मसले का हल है, जो आपकी कमजोरी और बीमारी की शिफा है, वो आप ही के अंदर है, वो बाहर कहीं नहीं है। इसलिए इब्लीस को, दुश्मन को जो है कभी मौका ना दें। दुश्मन जो कहता है उस पे गौर ना करें। दुश्मन ये चाहता है कि आपका फोकस इस बात पे हो कि आपके अंदर कमी क्या है। इब्लीस का फोकस ये है कि आप इस बात के ऊपर जो है वो गौर करते रहें कि आप किन चीजों में लैक करते हैं, किन चीजों की कमी है, बजाय इसके कि आप ये गौर करें कि आप किस को कैरी करते हैं। आप खुदा को लेके चलते फिरते हैं, आप खुदा को लेके उठते बैठते हैं, आप खुदा को लेके सोते हैं, खुदा को लेके उठते हैं। ये आपकी वैल्यू है, ये आपकी पोजीशन है, ये आपकी जगह है कि खुदा आपके अंदर रहता है। आप जब चलते फिरते हैं अब ये ना समझे हम ही चल चल रहे हैं, नहीं। The God by himself in you। जिसको ये समझ लग जाती है उसको किसी की जरूरत नहीं रहती। फिर वो किसी की मदद नहीं चाहता, वो मदद लेने वाले नहीं, वो मदद करने वाले बन जाते हैं। फिर वो हाथ रखते हैं तो बदरुएं चला चला के निकलने लगती हैं, बीमार कमजोर शिफा पाने लगते हैं, जिंदगियां बहाल होने लगती हैं, कुव्वत बहने लगती है, कुदरत नजर आने लगती है, जोर नजर आने लगता है, कमजोर उठ के खड़े हो जाते हैं, जिंदगियां बरकत से मामूर हो जाती हैं। क्योंकि मुझे ये समझ लग गई है जो मेरे अंदर है वो उससे बड़ा है जो मेरे खिलाफ। खुदा की कुदरत जो है वो आपके अंदर है, खुदा का जोर आपके अंदर है। क्यों? क्योंकि खुदा खुद आपके अंदर है। एक दफा किसी से बात हुई, उसने कहा ये कैसे हो सकता है। मैंने कहा कभी किसी को देखा है कि उसके अंदर बदरुएं हैं? कहता हाँ। तो मैंने कहा जिसके अंदर बदरुएं हो सकती हैं उसके अंदर खुदा क्यों नहीं हो सकता? खुदा रूह है, अगर और रूहें रह सकती हैं तो खुदा क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि खुदा रूह है और जरूर है कि उसके प्रस्तार, उसको प्यार करने वाले, उस
सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। रूह हमारे अंदर, खुदा की कुदरत हमारे अंदर, खुदा खुद हमारे अंदर है। और इब्लीस चाहता है कि मैं और आप जो हैं वो इसको भूले रहें, मैं और आप जो हैं वो इससे नावाकिफ रहें। सूल कहता है मैं तुम्हारा इस बात से नावाकिफ रहना नहीं चाहता। फिर वो यीशु के बदन और खून का ये जो बातें हैं ये हमें जिंदगी बख्शती हैं। ये मुकाशफात हमें उठा के खड़ा कर देते हैं। ये मुकाशफात हमारी पोजीशन चेंज कर देते हैं। ये मुकाशफात हमारी जिंदगी में नया शिफ्ट लेके आते हैं। और कुदरत जो है हम इधर उधर ढूंढते फिरते हैं, पता लगता है कुदरत तो हमारे अंदर ही है। हम गिफ्ट लेने बाजार ढूंढते फिरते हैं, पता लगता है वो इससे अच्छे गिफ्ट तो घर में पड़े हुए, आपको पता नहीं फलां फलां फलां। Everything is in you. There is nothing which you can find outside of you. सब कुछ खुदा ने आपके अंदर रखा हुआ है, आपके अंदर प्लांट किया हुआ है। मुझे और आपको सिर्फ खुदा के पाक रूह को दुरुस्त जगह देनी है। वो आपकी और मेरी जिंदगी में एक साइलेंट पैसेंजर की तरह ना हो जो बैक सीट पे या पैसेंजर सीट पे बैठा हुआ है, तो आपके और मेरे लिए कोई फायदा नहीं है। खुदा के पाक रूह को ड्राइविंग सीट दें, आपकी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पे आके बैठ जाए, जहां पे वो आपके फैसलों पे असरअंदाज हो, जहां पे वो आपकी जिंदगी पे असरअंदाज हो, जहां पे वो आपके हालात पे असरअंदाज हो, आपकी जिंदगी की तमाम चीजों पे असरअंदाज हो। और फिर आपके अंदर एक ऐसा पीस आएगा जो किसी और तरह से नहीं आ सकता। इसलिए नहीं कि आप परफेक्ट हो गए हैं, इसलिए पीस आएगा क्योंकि प्रिंस और पीस जो है अब वो आपकी जिंदगी में रूल करता है। सो हमें उसको ड्राइविंग सीट देनी है। तू ड्राइव कर, खुदा के काम के लिए हमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। खुदा का काम हो, हम 100 चीजें छोड़ के उसको कर सके। क्यों? क्योंकि जो हमारे अंदर है, हमारे तो जो साथ रहता है, मेरी बीवी, आपका खावन, आपके बच्चे, आप उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप उसके लिए जो अंदर रहता है इसलिए तैयार नहीं होते सब कुछ करने के लिए। बाज़ का तो ऑप्शनल हो जाती हैं चीजें क्योंकि हम उसे जानते नहीं हैं, हमने पहचाना ही नहीं है उसको, हमने उसको देखा ही नहीं उस तरह से। और अगर उस वजह से हम करते हैं तो फिर हमें एक कदम और आगे जाने की जरूरत है। मुझे और आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है और उसको वो जगह देनी है जो उसकी जगह बनती है। और फिर अपनी जिंदगी में देखिए आपकी जिंदगी में नया काम होने लगेगा। मैं चाहता हूं कि पाक रूह के बपतिस्मे के लिए हम दुआ करें कुछ वक्त के लिए। आज उसके लिए 5-7 मिनट चंद एक बातें जो हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। याद रखें कि पाक रूह का बपतिस्मा जो है ये एक ऐसी नेमत है जो हर एक ईमानदार का हक है। जो भी बच्चा पैदा होता है और वो बोलता नहीं तो उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। आप कोई भी बच्चा पैदा हो और वो ना बोले, 5 साल हो जाए, 7 साल हो जाए या तकरीबन 1.5-2 साल ही हो जाए, कब बच्चे बोलने लग जाते हैं? छोटा मोटा साल के बाद ही। ऑलराइट, तो 1.5 साल के बच्चे हो जाए तो बंदा कहता है यार इसको डॉक्टर को चेक कराओ। तो ये जो रूहुल कुदस की गैर जुबानें हैं, बेगाना जुबानें हैं, ये खुदा के बच्चों की जुबान है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जुबान जो हम बोलते हैं ना, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, स्वीडिश, व्हाट्सएवर जो आपकी जुबान है, ये ओरिजिनल जुबान नहीं है आपकी रूह की। आपकी रूह की ओरिजिनल जुबान बेगाना जुबान है, जिसको अब हम बेगाना कहते हैं। पहले हम यही जुबान बोला करते थे जब हम रूह में हुआ करते थे, जब इस दुनिया में आने से पहले
पहले जो रूहों की जुबान है, ये वो जुबान है, यही जुबान खुदा आपको देना चाहता है, क्योंकि वो रूह है और वो जुबान जानता है और ये जुबान इब्लीस नहीं जानता। इसलिए वो चाहता है आप इस जुबान में दुआ करें ताकि आपकी हॉटलाइन पे खुदा से बातचीत हो, खुदा से कम्युनिकेशन हो और इब्लीस आपको उनकी दुआओं को सुन के आपको हिंडर ना करे। अपनी जुबान में दुआ करना बुरी बात नहीं है, लेकिन ये जुबान अगर मुकद्दस पतरस के लिए जरूरी थी, अगर ये जुबान याकूब, यूहन्ना, इंद्रियास, फिलिप्पस, बरतलमाई, मत्ती, थोमा, इन लोगों के लिए जरूरी थी। मुकस्सा, मरियम और जो खवातीन थी वो वहां मौजूद थी, उनके लिए जरूरी थी। अगर ये जुबान उनके लिए जरूरी थी तो ये जुबान मेरे लिए जरूरी क्यों नहीं है? मेरे लिए भी जरूरी है, उतनी ही जरूरी है जितनी उनके लिए जरूरी थी। उन्होंने ये नहीं कहा नहीं इसकी हमें जरूरत नहीं है। यस, दे स्टेड, वो ठहर गए और खुदा ने उनको उससे भरा। तो इसके लिए जो पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि किसी शख्स ने अपनी जिंदगी खुदा के हवाले कर दी हो, किसी ने अपनी जिंदगी खुदा को दे दी हो। जब हम अपनी जिंदगी खुदा को दे देते हैं, जिसे आप तौबा करना कहते हैं, तो तौबा करने से आप और मैं एलिजिबल हो जाते हैं कि खुदा का पाक रूह जो है वो हमें भरे अपनी कुदरत से। फिर हम एलिजिबल हो जाते हैं, फिर हम इस लायक हो जाते हैं कि खुदा का पाक रूह जो है वो हमारी जिंदगियों में काम करे। दूसरी बात, अगर मुझे और आपको पाक रूह का बपतिस्मा चाहिए गैर जुबानों के साथ, तो फिर उसकी प्यास रखनी है। क्या करना है? उसकी प्यास हमें रखनी है। और यूहन्ना 7 बाब की 37 आयत से 39 आयत का पढ़ना शुरू करें। आपको पता चलेगा कि जब आप प्यास रखते हैं तो उसका मानी क्या है। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। यूहन्ना की अंजील है, उसका 7 बाब है। खुदा यीशु मसीह वहां खड़े हैं और खुदा यीशु मसीह जब उनसे बात कर रहे हैं तो प्यास के ताल्लुक से खुदा बात कर रहे हैं। उसकी 37 आयत से 39 आयत तक लिखा है। यूहन्ना की अंजील है, 7वां बाब है और 37 आयत में लिखा है, जो कुछ बाप मुझे देता है, जो कुछ बाप मुझे देता है मेरे पास आ जाएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे निकाल ना दूंगा, क्योंकि मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा हूं कि अपनी मर्जी पर अमल करूं, बल्कि इसलिए कि अपने भेजने वाले की मर्जी पर अमल करूं। मैं 6 बाब पढ़ रहा हूं, 7 बाब की 39 आयत 37 से। फिर ईद के आखिरी दिन जो खास दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। प्यास रखनी जरूरी है अगर गैर जुबान का बपतिस्मा चाहिए। जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से जैसा किताबे मुकद्दस में आए जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। उसने ये बात जो प्यास की थी, प्यास रखना है और जिंदगी का पानी बहेगा, किसके बारे में कही? उसने ये बात उस रूह की बाबत कही जिसे वो पाने को थे, जो उस पर ईमान लाए, क्योंकि रूह अब तक नाजिल ना हुआ था। प्यास रखनी है। दूसरी बात, प्यास रखनी है। और तीसरी बात जो याद रखनी है और जो अजीबोगरीब है वो है पीना। क्या करना? पीना। ये जो है ये बहुत जरूरी है कि हम जो है वो इसको पिए। पाक रूह के बपतिस्मे के लिए आपको पता है कि सबसे मुश्किल बात यह है कि यह सबसे आसान है इसको लेना। दुनिया में मैक्सिमम बच्चे जो पैदा होते हैं उन्हें बोलने के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती। क्या अब 6-8 महीने के बच्चे को आप लेके जा रहे हैं कि ये इसकी जो है वो थेरेपी की जाए? स्पेशल केसेस होते हैं, वरना नहीं। लेकिन रूहानी दुनिया में, जो जिस्मानी दुनिया है, उसमें 99% बच्चे खुद ही बोलने लग जाते हैं।
1% होंगे जिनको थेरेपी की जरूरत पड़ती है। रूहानी दुनिया में 1% है जो बोलते हैं, 99% जो है उनको थेरेपी की जरूरत पड़ती है। जो है इसका प्रॉब्लम ये है कि हमें ये बड़ी आसानी से मिल सकता है। आज सादा बात है इसको कि बस आपने इसको लेना है, और लेने के लिए आना किसके पास है? मसीह के पास। पाकरू देता कौन है? मसीह पाकरू देता है। अगर आप अमाल की किताब पढ़ेंगे, उसका 2 बाब है और उसकी 32-33 आयत है। इसमें लिखा है, इसी यीशु को खुदा ने जलाया जिसके हम सब गवाह हैं। बस खुदा के दाहिने हाथ में सरबुलंद होकर और बाप से वो रूहुल कुदस हासिल करके जिसका वादा किया गया था, उसने ये नाजिल किया जो तुम देखते और सुनते हो। ये मुकद्दस पतरस लोगों को कह रहे हैं। सो हमने मसीह के पास आना है और उससे कहना है, क्योंकि वो पाकरू जो है वो दे सकता है, वो उसका बपतिस्मा जो है हमारी जिंदगी में उसको जारी कर सकता है। पाकरू जब मिलता है तो फिर हमें ये तजर्बा जो है वो हो जाता है। सो हमने इसको लेना और पीना है। पीने के लिए क्या करना पड़ता है? राजी होना पड़ता है। आप कभी मुंह बंद करके पी सकते हैं? नहीं पी सकते। आप कभी मुंह बंद करके बोल सकते हैं? ऐसे तो कर सकते हैं, लेकिन बोल नहीं सकते। हो सकता है मुंह बंद करके मैं लफ्ज बोल रहा हूं, लेकिन दूसरा उसको समझ नहीं पाएगा। सो उसके लिए आपने राजी होना है। आपने इस इरादे से कि मैंने अब लेना और पीना है। खुदा आपको देना चाहता है, और यहां पे लिखा हुआ है कि वो उसने ये कहा क्योंकि रूहुल कुदस नाजिल हुआ था, और रूहुल कुदस वो चाहता है कि आपको मिले, वो चाहता है कि आप गैर जुबानों से भरे, लेकिन बोलनी आपने है। खुदा के कलाम में अगर अमाल की किताब 11 बाब की 12 आयत में पढ़ें तो मुकद्दस पतरस को खुदा ने कहा कि उसको कहा कि ये जो लोग आए इनके साथ जा। जाने का हुक्म खुदा ने दिया, तो जाना किसने था? पतरस ने खुद। खुदा आपको पीने के लिए देगा, पीना आपने है। खुदा आपको बोलने के लिए लफ्ज देगा, बोलने आपने है। आपने जो कुछ अंदर आया है उसको आपने अटर करना है। अगली बात, उस जुबान को जो आपके अंदर बबल कर रही है उसको कंट्रोल ना करें। ये खुदा की डिसग्रेस है। ये खुदा ने मुझे सिखाया कि ये उसकी क्या है? उसकी डिसग्रेस है। आप बड़े शौक से तैयार होते हैं, आप जो है तोहफा पैक करते हैं, आप आते हैं और आप किस कहते हैं, मैं ये आपके लिए लेके आया हूं, जो भी कोई फंक्शन है, या नहीं मैंने नहीं लेना। अब मुझे पता है बबल तो खा रही है, आपने किया तो है, लेकिन मैंने नहीं लेना। नहीं मैं आपके लिए लेके आया। आपका बर्थडे है या आपका जो भी हो, किसी की जिंदगी का इवेंट, और वो कहे नहीं जी मैंने नहीं लेना, और वो कंटिन्यू इनकार करता चला जाए, तो एक वक्त आएगा आपको गुस्सा चढ़ जाएगा। कहेंगे कि आप कैसी बात कर रहे हैं, आपको ये लेना चाहिए, आपका ये दिन है, ये बात है, मैं तैयारी करके आया। सो खुदा जो पाक रूह है, जब उसकी जुबानें आपके अंदर बबल कर रही हैं, आपने उनको कंट्रोल नहीं करना है, क्योंकि वो कभी भी आपकी फ्री विल को वायलेट नहीं करता, वो कभी भी आपके अंदर जबरदस्ती नहीं करता, वो लफ्ज देता है, बोलने आपने है। जुबान मैंने खोलनी है, अपनी जुबान को हवाले मैंने करना है। जब हम इधर आए थे, मुझे तो बहुत अजीब लगा था जब मैंने पहली दफा सुना था हीर मोड। आज तो ये बड़ा वान लिया, हम मजाक किया करते, लो जी स्वीडिश हुर मुर्दू, हम फर्क तरीके से उसको, क्योंकि हमें ऐसी समझ आती थी। आज ये जुबान में हम बहुत सी बातें करते हैं, कभी सोचा भी नहीं ये कोई स्ट्रेंज लैंग्वेज। जो भी जुबान आप पहली दफा सुनते हैं, सारी की सारी जुबानें आपको स्ट्रेंज लगती हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि गैर जुबान आपको मिले और आपको बड़ी फेमिलियर लगे? ऐसे नहीं हो सकता।
जब हम इधर आए तो हमने अपनी जुबान को इसके हवाले कर दिया और अपनी जुबान को अलाउ किया कि वो यहाँ की जुबान को सीखे। आज भी कई लफ्ज़ हैं स्वीडिश को, वो चलते ही नहीं है जुबान में, वो मुश्किल से अदा होते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि हमने अपनी जुबान को, अपने आप को हवाले किया, राजी किया हमने इसको सीखना। जब खुदा का पाक रूह आपके अंदर अल्फाज को देगा भी, बबल होंगे, तो आपने आंखें बंद करके आपने अपने आप को, अपनी जुबान को हवाले कर देना है। और आपने ये नहीं सोचना नहीं ये तो अजीब सी है, जो आपको मिलेगा वो अजीब ही होगा। इसलिए अजीब नहीं होगा कि वो अजीब है, इसलिए अजीब होगा कि आपने कभी बोली नहीं है। जैसे आपको स्वीडिश अजीब लगती थी, आप कभी फ्रेंच सुने आपको अजीब लगेगी, आप कभी चाइनीज सुने आपको बहुत ही अजीब लगेगा, आप कभी अफ्रीकन लैंग्वेज सुने, जब जो ब्लैक लोग हमारे साथ उठते बैठते हैं, बहुत ही अजीब लगता है कि ये क्या डिंग डोंग 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 करके कर रहे हैं। एक उनकी जबान है उसमें डी बहुत यूज होता है, सो अजीब लगती है। तो आपने ये नहीं सोचना। तो आखिरी दो बातें दुआ करने से पहले, आज थोड़े 10-15 मिनट और लगेंगे, लेकिन ये जरूरी है कि अबलीस जब है वो हमारे इर्द गिर्द रहता है, और अबलीस जब आता है वो क्या कहता है, दो बातें हमें कहता है। पहले वो ये कहता है कि ये तुम खुद बोल रहे हो। क्या चीज हमारे दिल में आती है कि नहीं ये खुदा नहीं डाल रहा, ये मैं खुद बोल रहा हूं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस बात में अबलीस ठीक होगा अगर वो ऐसी बात आपके दिल में डालेगा, क्योंकि बोलनी आपने खुद ही है। जुबान खुदा देगा, बोलनी मैंने। जैसे वो आदम और हवा के पास गया था, हवा के पास गया था, तो क्या कहा था कि जिस दिन तुम ये फल खाओगे तुम किसकी मानद हो जाओगे। प्रॉब्लम क्या थी उसमें? प्रॉब्लम ये थी वो तो है ही खुदा की मानद। तो ये बात जो है उसकी अजीब नहीं है कि अगर वो हमारे दिल में ये डाले कि नहीं ये तो मैं खुद ही बोल रहा हूँ, मुझे क्या पता, मैं खुद ही बोल रहा हूँ, सारे बोल रहे हैं तो मैं भी खुद बोलना नहीं। बोलनी आपने है, जुबान उसने देनी है, बोलनी आपने है। वो आपके दिल में डालेगा, अटर आपने करनी है। वो पाखरू आपके लिए नहीं करेगा। आप जब बच्चा पैदा होता है आप कभी उसके मुंह में घुस के उसको करते हैं, कोई या कोई करंट लगाते हैं या कोई डीवीडी डालते हैं, कुछ करते हैं कि वो कुछ बोले माँ पापा, नहीं, कुछ नहीं। आप उसको उसके अंदर जो है चीजें बाहर से डालते हैं, अटरेंस डालते हैं, और फिर आपके मुंह की शेप और कानों से अल्फाज को सुन के वो खुद उसको अदा करता है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो पहली बात जो वो आपके दिल में डाल सकता है, अभी जब हम दुआ शुरू करेंगे, वो आपके दिल में डाल सकता है कि नहीं ये आप खुद ही बोल रहे हैं, तो उसको कहेंगे हाँ मैंने खुद ही बोलनी है, किसी और ने थोड़ी बोलनी है, जुबान मेरी है, मैं जो खुद ही बोलूंगा, कोई और थोड़ी बोलेगा, ये आपने खुद ही बोलना है। दूसरी आखिरी बात जो है वो आपके दिल में ये डालेगा कि आपको ये कैसे पता है कि ये आप जो बोल रहे हैं ये ठीक है और ये खुदा की तरफ से है। आखिरी हवाला जो है मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, लूका की अंजील है, उसका 11वां बाब है और उसकी 11 आयत में लिखा है, तुम में से ऐसा कौन सा बाप है जब उसका बेटा रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, मछली मांगे तो उसे मछली के बदले सांप दे, अंडा मांगे तो उसको बिच्छू दे। अगली बात सुने अब जो खुदावंद ने कही, बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूहुल कुदस क्यों ना दे। दिस वाज द पॉइंट। रूहुल कुदस पॉइंट था मसीह का। वो बताने ये चाहते थे कि पाक रूह मांगोगे तो पाक रूह ही मिलेगा, क्योंकि जब तुम वहां पे पहुंचोगे, वहां तक जाओगे, मैं चला जाऊंगा, रूहुल कुदस नाज़िल होगा, तो सोचना नहीं है कि ये मैं क्या बोल रहा हूं। और जब उन्होंने ये सोचना बंद कर दिया तो फिर वो ऐसे लगने लगे गोया वो ताजा मैं के नशे के अंदर, कोई परवाह नहीं था, क्योंकि मसीह सिखा गया था कि वो उनको रोटी पानी सिखा के नहीं गया था कि मछली अंडा पत्थर इसके नहीं, मतलब ये था कलाम में लिखा है ताकि उन्हें ये समझ आए कि जब हम रूहुल कुदस मांगेंगे तो रूहुल कुदस मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। इब्लीस अगर डाले कि नहीं हमें कैसे पता, आपको कैसे पता है कि ये पाकरू की तरफ से मिल रहा है, पाकरू की जुबानें हैं,
हमें इसलिए पता है क्योंकि बाइबल में लिखा है। हम इसलिए इसको जानते हैं क्योंकि जो रसूल थे, जो खुदा के लोग थे, उन्होंने ऐसी रिसीव किया, उन्हें कोई मुश्किल पेश नहीं आई। आइए अपनी आंखों को बंद करके खड़े हो जाएं चंद लम्हों के। अगर आप पा रहे हैं हमको गीत एक आधा मिसरा जो है उसको गाएं, बाद में उसको बजाते रहें बहुत हल्की आवाज में। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया। दो बातें आज इबादत के वर्शिप के दौरान हुई। इससे पहले कि हम गीत गाएं, जब भाई जैरी दुआ कर रहे थे तो जो वो उर्दू में बोलते थे और मैं गैर ज़ुबानें बोल रहा था, तो मुझे पता लग रहा था मैं उनको गैर ज़ुबानों में साथ दुआ कर रहा हूँ। एग्जैक्टली वही वर्ड इन टंग्स। एक होता है कि आप गैर ज़ुबानें बोलते हैं और कोई दूसरा उसका अपनी ज़ुबान में तर्जुमा करता है। ये तजर्बा मुझे पहली दफ़ा हुआ है कि कोई हमारी ज़ुबान में उर्दू में दुआ कर रहा है, बात कर रहा है, और जो है आपको उसकी गैर ज़ुबान में कि वो दुआ आप गैर ज़ुबान में भी कर रहे हैं। सो दैट वाज सो पावरफुल एंड वंडरफुल एक्सपीरियंस। दूसरी बात जो हुई वर्शिप के दौरान वो ये थी कि जब हम गा रहे थे कि बंधन टूटते जाते हैं, तो उसी वक्त मैंने रूम में देखा कि बहुत सी चेन्स हैं जो बंधी हुई हैं, मोटी मोटी चेन्स हैं, वो एकदम से धड़म से जमीन पे गिरी और पीछे से लेके आगे तक बहुत सी चेन्स को मैंने देखा, काफी मोटी मोटी चेन्स थी। और वो चेन्स जो है उनके आखिर में गोल बड़े बड़े रिंग बने हुए थे, आखिर में जैसे लटकी होती है किसी जगह। तो वो चेन्स जो है वो धड़म से जमीन पे गिर गई और मैं खुदा की शुक्रगुजारी और कुदरत से भर गया। सो खुदा की हजूरी यहाँ मौजूद है, खुदा का पाकरू यहाँ मौजूद है। खुदा हमारे अंदर आज नया काम करना चाहता है। जब हम ये गीत गाते हैं, अपना आप उसके हवाले कीजिए, उसको दीजिए, और जो है इधर उधर नहीं आपने देखना, आंखें चोरी चोरी खोल के नहीं देखना। हमारी आदत जब चोरी चोरी भी आंखें खोल के देखते रहते हैं। उसमें महव होने की कोशिश करें, थोड़े वक्त के लिए उस पर गौर करें, अपना आप उसके हवाले करें। जब आप उसके हवाले हो जाएंगे, और जो मैंने बताया है, जो अटरेंस आपको खुदा की तरफ से मिलेगी, जब हम आपके करीब आते हैं, दूर से दुआ करते हैं, तो आपने जो है जो गैर जुबानें बोल सकते हैं, वो इस वक्त में जहाँ जहाँ खड़े हैं, जब हम दुआ बाद में शुरू करेंगे, आपने सिर्फ गैर जुबानों में दुआ करनी है। और बाकी जो है आपने मांगना नहीं है। आपने जब मुंह खोलना है, आपके अंदर लफ्ज आने, कुछ के अंदर ऑलरेडी लफ्ज आने शुरू हो गए, मैं फील कर, आपके अंदर जो है ना कुछ होना शुरू हो गया। आपने सिर्फ अपनी जुबान पाकरू के हवाले कर देनी है, वो खुद ही लफ्ज जो है वो अदा होने शुरू हो जाएंगे। आपने कुछ नहीं करना, पाकरू ने करना। आप जो खुदा के बच्चे हैं, ये ऑलरेडी सब कुछ आपके अंदर है। एवरीथिंग इज इन यू। गैर जुबानें ऑलरेडी आपके अंदर है, बहुत सालों से आपके अंदर है, आपने उनको दबाया हुआ। आप जो है इस बात में राजी नहीं हो रहे, आप और मैं गूंगे बने हुए। आज जो है गैर जुबानों के लिए आपने अपना दिल खोला। आइए, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू, हालेलुया। Hallelujah.